حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائن۔ حیدرآباد پولیس کا تاریخی قدم، اب پولیس خود متاثرین کے پاس جائے گی۔ کمشنر وی سی سجنار کا فوری انصاف کا اعلان، گھر بیٹھے ایف آئی آر کی سہولت۔ فون ٹیپنگ کیس کی تحقیقات میں تیزی، کے ٹی آر کی بھی طلبی۔ پہنچے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن، کہا میں تحقیقات سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ پولیس عہدیدار حکومت کے اشاروں پر کام کر رہی ہے، بی آر ایس انہیں معاف نہیں کرے گی، سابق وزیر ٹی ہریش راؤ کا سخت انتباہ۔ بلدیاتی انتخابات میں بی آر ایس 10% بلدیات پر بھی کامیابی نہیں کرے گی حاصل، ریاستی وزیر کے وینکٹ ریڈی کا دعویٰ۔ کوکٹ پلی میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی، ہائیڈرا نے 3300 مربع گز کا پارک کر لیا آزاد، غیر قانونی تعمیرات، مسمار، فینسنگ اور سرکاری بورڈ نصب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں تلنگانہ پولیس نے متاثرین اور شہریوں کے حق میں ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے متاثرہ شہری مرکوز پالیسی نافذ کی ہے، جس کے تحت کچھ مخصوص جرائم میں متاثرین کو پولیس اسٹیشن آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے گھر سے ہی ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ شہر کے پولیس کمشنر وی سی سجنار آئی پی ایس نے بتایا کہ اس پالیسی کا مقصد متاثرین کو فوری انصاف فراہم کرنا ہے اور جسمانی یا ذہنی طور سے دباؤ آنے والے افراد کو مزید تکلیف سے بچانا ہے۔ اس پالیسی کے تحت خود پولیس افسران متاثرین کے پاس پہنچ کر شکایت وصول کریں گے، ایف آئی آر درج کریں گے اور اگر متاثرہ فرد ہاسپٹل میں ہو تو وہاں جا کر بھی تفصیلات جمع کریں گے۔ پولیس کمشنر نے واضح کیا کہ کسی بھی افسر کی لاپرواہی کی صورت میں محکمہ کارروائی لازمی ہوگی اور ہر کیس کی نگرانی اے سی پی اور ڈی سی پی سطح کے افسران کریں گے۔ شہریوں کو متاثرہ شہری مرکوز پالیسی کے تحت ایف آئی آر درج نہ ہونے کی صورت میں حیدرآباد سٹی پولیس کے واٹس ایپ پر اطلاعات دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سائبر جرائم کے متاثرین کے لیے شروع کی گئی سی مترا سہولت اب مزید بہتر اور شہری دوست بن گئی ہے۔ پولیس کمشنر نے ڈی جی پی شیوادر ریڈی اور دیگر افسران کو اس پالیسی کی تشکیل پر خصوصی شکریہ ادا بھی کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ کو فون ٹیپنگ کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن طلب کر لیا گیا ہے، جہاں آج وہ پیش ہوئے۔ اس سے قبل وہ اپنی قیامگاہ سے بی آر ایس ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون گئے، جہاں پارٹی کے کارکنوں اور قائدین نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور حمایت میں نعرے لگائے۔ بی آر ایس لیڈر و سابق وزیر ٹی ہریش راؤ بھی کے ٹی آر کے ساتھ موجود تھے اور وہ بھی پولیس اسٹیشن تک گئے، تاہم پولیس نے کارکنوں کو روک دیا۔ کے ٹی آر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ کسی غیر قانونی یا غیر اخلاقی عمل میں ملوث نہیں ہیں اور گزشتہ 2 سالوں سے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کے خاندان کو ذہنی اذیت پہنچائی جا رہی ہے اور انہیں جھوٹے الزامات سے جوڑا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس معاملے کی فوری قانونی لڑائی لڑیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ کس نے ان کی شہریت کو نقصان پہنچایا ہے، آیا یہ کام ریونت ریڈی پولیس اہلکاروں یا میڈیا کے کچھ حصوں نے کیا ہے۔ بی آر ایس کے قائدین اور کارکنوں نے بھی حکومت کے اس اقدام پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے اور پارٹی اس کے خلاف جدوجہد کرے گی۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی راما راؤ نے ان کی کردار کشی کرنے اور امیج خراب کرنے والوں کو سخت انتباہ دیا اور کہا کہ پارٹی انہیں معاف نہیں کرے گی۔
फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन रवानगी से खबर मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि कुछ पुलिस ओहदेदार ऐसे हैं जो रेवंत रेड्डी के इशारों पर इनकी कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि बीआरएस की इख्तिदार पर वापसी के बाद ऐसे पुलिस ओहदेदारों को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि फोन टैपिंग मामले में इनका कोई रोल नहीं है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वो तहकीकात से या हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से खौफजदा भी नहीं होंगे। केटीआर ने कहा कि वो रेवंत रेड्डी हुकूमत से सवाल करने का सिलसिला जारी रखेंगे जो गैर कानूनी कामों में मुलविस है। तहकीकात के नाम पर इन्हें खौफजदा नहीं किया जा सकता। अवामी मसाइल पर इनकी तवज्जो और जद्दोजहद जारी रहेगी। నా పిల్లల్ని నా వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళందరినీ విపరీతమైన క్షోభకు గురి చేశారు. అయినా కూడా ఎన్నడూ బాధపడలేదు, బయటికి వచ్చి వేరే వాళ్ళలాగా దొంగ ఏడుపులు ఏడవలేదు. నేను నిబద్ధతతో పనిచేసిన నాయకుని కాబట్టి ఎవరికి భయపడకుండా 2 ఏళ్లుగా తలవంచకుండా పోరాటం చేస్తా ఉన్నాను. తప్పు చేసినోడు భయపడతాడు, తప్పు చేయనోళ్ళు ఎవరికి భయపడాడు. రేవంత్ రెడ్డి కాదు, వాని జేజమ్మకు కూడా భయపడే సమస్య లేదు. ముమ్మాటికి ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఈ కేసు ఇంతటితో మేము వదిలిపెట్టాం. నా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్కి బాధ్యులైన రేవంత్ రెడ్డిని ఆయన తొత్తులుగా పనిచేస్తున్న పోలీసులు కొంతమంది, అందరినీ కాదు, కొంతమంది పోలీసులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన తొత్తులుగా ఆయన అడుగులకు మడుగులతో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళని నేను కూడా వదిలిపెట్టను. ఎందుకు వదిలిపెట్టను? ఎందుకంటే నా వ్యక్తిత్వం హననం చేస్తూ ఉన్నారు. లేని లింకులు అంటగట్టి, లేని రంకులు అంటగట్టి, నాకు ఇష్టం ఉన్నట్టు ఎవరెవరో యాక్టర్లకు లింకులు పెట్టి చిల్లర రాజకీయం ఏదైతే చేస్తున్నారో ఈ విషయంలో నేను మాత్రం వదిలిపెట్టను. మీరేదో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి హార్వర్డ్కి పోయిండు, ఆడ వచ్చిరాని ఇంగ్లీష్లో ఏం నేర్చుకుంటుండో ఏం చచ్చిండో కానీ ఆయన వచ్చే వరకు టైంపాస్ చేద్దాము అని చెప్పి మీరు డ్రామా చేస్తున్నారు. మాకు తెలుసు, ధారావాహికలాగా నడుపుతా ఉన్నారు. మాకేం ఇబ్బంది లేదు. మీరు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా వస్తాం. ఎందుకంటే చట్టాన్ని గౌరవించే పౌరులం, తప్పకుండా వస్తాం. మేము తప్పు చేయలేదన్న మాటనే చెప్తాము. మీరు ఎన్ని రకాల డైవర్షన్ గేమ్లు ఆడినా మేము మాత్రం అర్జునుడి కన్ను ఎట్లయితే ఆనాడు తన గురి మీదనే ఉండనో అట్లే మా గురి మొత్తం కూడా ఈ ప్రభుత్వ అసమర్థత మీద, మీ అవినీతి మీద, మీరు ప్రజలకిచ్చి ఎగ్గొడుతున్న హామీల మీద, యనుమల రేవంత్ రెడ్డి ఎగవేతల రేవంత్ రెడ్డికి ఎట్లా మారిపోయిండో అన్న దాని మీద 420 హామీలు ఇచ్చి ఇప్పటి వరకు 4 హామీలు కూడా నెరవేర్చకుండా ఎట్లా ఈ లుచ్చా పనులు చేస్తున్నాడో వీటిని ఎండగడుతూనే ఉంటాం. 100% వదిలిపెట్టకుండా ప్రాణం పోయేదాకా పోరాడుతూనే ఉంటాం. ఎవరికి భయపడకుండా, ఎవరికి తలవంచకుండా నిఖార్సైన తెలంగాణ బిడ్డలుగా, కేసీఆర్ గారి సైనికులుగా, కేసీఆర్ గారిని తిరిగి ముఖ్యమంత్రి చేసేదాకా మేమందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూ ఉంటామని చెప్పి साबिक रियासती वजीर व बीआरएस लीडर मिस्टर टी हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत बीआरएस कायदीन के ताल्लुक से इंतकामी जज्बे के तहत काम कर रही है। उन्होंने फोन टैपिंग केस में बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव की तलबी पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत उमूमन ऐसे ओहदेदारों को तहकीकात करने वाली SIT में शामिल कर रही है जो कांग्रेस हुकूमत से गुर्बत रखते हैं। हरीश राव ने पुलिस को भी इंतबाह दिया और कहा कि बीआरएस इख्तिदार में वापस आएगी और फिर इन पुलिस ओहदेदारों को माफ नहीं किया जाएगा जो रेवंत रेड्डी हुकूमत के इशारों पर काम करते हुए बीआरएस कायदीन को हिरासां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के आला ओहदेदार भी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं जो क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले ओहदेदार अगर 7 समंदर पार भी छुप जाएं तो वो बीआरएस इन्हें ढूंढ कर निकालेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। దాదాపు హైదరాబాద్ లో ఉన్న పోలీసులు వేలాది మంది పోలీసులను పెట్టి రోడ్ల మీద ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బట్ ఎవరు ఎన్ని చేసినా తప్పు చేయని వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మేము తప్పు చేయలేదు. ఇది కేవలం రాజకీయ ప్రేరేపితమైన కేసు. రాజకీయ కోణములో కుట్రతో ఉద్దేశపూర్వకంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులను ఇబ్బంది పెట్టాలని రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న ఒక దుష్ట పన్నాగం. అందువల్ల ఇలా కేటీఆర్ గారు ఈరోజు ధైర్యంగా వెళ్లారు. ఉల్టా వాళ్ళని అడుగుతారు. ఎందుకంటే అనేక కేసుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల మీద దుష్ప్రచారం జరిగింది. ఆ రోజు ఎందుకు కేసులు పెట్టలేదు? ఆ రోజు మహిళలకు ఇబ్బంది జరిగితే, మహిళల ఆత్మాభిమానాన్ని దెబ్బతీస్తే కేటీఆర్ గారి మీద డైరెక్ట్ గా టీవీల్లో, పత్రికల్లో వార్తలు రాయించిన పోలీస్ అధికారులు రేవంత్ రెడ్డి మీద కూడా ఈరోజు విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని విషయాలు కూడా బయటకు రావాలి. కావాలని రిటైర్మెంట్ కు దగ్గరగా ఉన్న అధికారులను సిట్లో పెట్టి రిటైర్మెంట్ కు దగ్గరగా ఉన్న అధికారులను ఉపయోగించి ఇవాళ మా మీద రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నేను మాత్రం ఒక్కటే చెప్పదలుచుకున్న అధికారులకు, మీరు అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తే, అక్రమంగా వ్యవహరిస్తే
మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఏ పొక్కలో దాక్కున్నా సప్త సముద్రాల బయట ఉన్నా మిమ్మల్ని పట్టుకొచ్చి విచారిస్తాము. ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. చట్టాన్ని అతిక్రమించినా, న్యాయబద్దంగా వ్యవహరించకపోయినా, ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు ప్రచారం చేసినా, తప్పుడు లీకులు ఇచ్చిన పోలీస్ అధికారులను వదిలిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. అంతకంతకు అనుభవిస్తారు. జాగ్రత్త, ఆలోచించుకోండి. రిటైర్ అయినాక మీకు ప్రభుత్వం రేపు వచ్చే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా మీకు సహకరించదు. మీ సొంత డబ్బులతో సొంత లాయర్లను పెట్టుకుని మీరు కేసులు వాదించుకోవాల్సి వస్తుంది. అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని న్యాయబద్దంగా వ్యవహరించండి, చట్టబద్దంగా వ్యవహరించండి. రేవంత్ రెడ్డి దావోస్కెళ్లి ఆయన ఇచ్చే డైరెక్షన్ లో కాదు, మీరు చట్ట ప్రకారంగా వ్యవహరించండి. దావోస్ నుంచో సిపి నుంచో ఇంకొకరి నుంచో తప్పుడు సూచనలు వాళ్ళిచ్చే ఆదేశాలను మీరు పాటించి చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే మాత్రం దానికి మీరే బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తాం. वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने अक़लियती बिरादरी से अपील की है कि वो अपने बच्चों को मियारी और बाविखार तालीम दिलाने के लिए तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। तालीमी साल 2026-27 के दाखिलों से मुताल्लिक़ पोस्टर हैदराबाद कलेक्ट्रेट में जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इन इदारों में इंग्लिश और उर्दू मीडियम के तहत तालीम, मुफ्त राशन, दरसी किताब, ग़िज़ा और सेहत की मुकम्मल सहूलतें फराहम की जाती हैं। इस मौके पर ऑनलाइन दाखिलों के लिए वेबसाइट जारी की गई, जिसके जरिए 5वीं ता 8वीं जमात की मखलूआ नशिस्तों पर भी दाखिले दिए जाएंगे। वजीर ने बताया कि अक़लियती अक़ामती इदारों ने तालीमी मैदान में शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं, जबकि रियासत के 33 अजला में कायम 205 इदारे अक़लियती तलबा के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत बन रहे हैं। रियासती वजीर इमारत व शवारे मिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दावा किया है कि रियासत में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी भारी कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस का इन इंतखाबात में सफाया हो जाएगा। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो केटीआर को चैलेंज करते हुए हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में 10% बल्दियात पर कामयाबी हासिल करके दिखाएं। रियासती वजीर ने कहा कि अगर बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस को 10% भी बल्दियात पर कामयाबी मिल जाती है तो केटीआर जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं। वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और वो बल्दियाती इंतखाबात में भी कांग्रेस पार्टी को ही कामयाबी से हमकिनार करेंगी। बीआरएस तेलंगाना के अवाम का एतमाद खो चुकी है और वो बल्दियाती इंतखाबात में 10% बल्दियात पर भी कामयाबी हासिल करके दिखाए। ఈ పార్టీ గుర్తెన్నికలే కదా సరే మొన్నటి దాకానేమో ఉన్న 10-20% ఏడపోతున్నారని సన్మానం అని తిరిగిన ఊళ్ళలో దీని మీద ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను 10% గెలుపు, 10% మున్సిపాలిటీలు గెలుపు, దేనికైనా దానికి సిద్ధం. बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामा राव और साबिक वजीर टी हरीश राव ने एक खानगी दवाखाना पहुंचकर वहां जेरे इलाज साबिक रियासती वजीर व बीआरएस रुकने असेंबली जगदीश रेड्डी की इयादत की। कहा गया है कि जगदीश रेड्डी मामूली अलालत की वजह से एक खानगी दवाखाने में जेरे इलाज हैं, वहां इनके मामूल के मुआयने वगैरह भी किए जा रहे हैं। जगदीश रेड्डी की अलालत और दवाखाने में जेरे इलाज रहने की इत्तलात पर हरीश राव के साथ केटीआर दवाखाना पहुंचकर जगदीश रेड्डी की इयादत की। जगदीश रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनकी सेहतियाब दरियाफ्त की। इसके अलावा डॉक्टर से भी बातचीत करते हुए इलाज वगैरह की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर साबिक वजीर डॉक्टर गड्डारी और दूसरे भी मौजूद थे। बीआरएस की रुकने असेंबली व साबिक रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि सरपंच इंतखाबात में बीआरएस की शानदार कामयाबी से रेवंत रेड्डी हुकूमत खौफजदा है और इसी वजह से एसआईटी तश्कील देते हुए पार्टी कायदीन को हिरासा किया जा रहा है। सबीता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को खौफ है कि मुजवजा बल्दियाती इंतखाबात में भी बीआरएस को सबकत और बढ़तरी हासिल होगी। इसी वजह से पार्टी के सीनियर और जिम्मेदार कायदीन को हिरासा किया जा रहा है। एसआईटी तश्कील देकर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले हरीश राव से कोयला स्कैम में पूछताछ की गई, फिर फोन टैपिंग केस में भी हरीश राव के टीआर को तलब किया गया है। हुकूमत दरअसल अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को खौफ है कि बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस को शानदार कामयाबी मिलेगी, इसीलिए खौफ की वजह से पार्टी कायदीन को हिरासा करने का सिलसिला शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन इस तरह की कार्रवाइयों से खौफजदा होने वाली नहीं है। ఎందుకంటే మొన్న సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఊహించినంత మెజార్టీ గెలుచున్నారు కాబట్టి, అంటే వాళ్ళు ఊహించనంత అసలు ఏమీ రాదు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు 40% 4,000 పై చిలుకు సర్పంచులు గెలుచున్నామంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వానికి వణుకు మొదలైంది. కాబట్టి రేపు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ పెట్టున్నాము. మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీని అప్పర్ హ్యాండ్ అవుతుందేమో అన్న ఆలోచనతో ఈ దానికి తెరలేపడం ఒక కారణమైతే, మొన్న హరీష్ రావు గారు బొగ్గు కుంభకోణంలో ఏదైతే అవినీతిని ప్రశ్నించారో దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి, దానికి సమాధానం చెప్పడానికి వాళ్ళ దగ్గర సమాధానం లేక ప్రజలోకి అది వెళ్లకుండా ఉండడానికి ఈరోజు ఫోన్ ట్యాపింగ్ది విచారణ అనేది మొన్న హరీష్ రావు గారికి నోటీస్ ఇవ్వడం, ఈరోజు కేటీఆర్ గారికి నోటీస్ ఇవ్వడం అనేది దాంట్లో భాగంగా నేను మాత్రం భావిస్తూ ఉన్నాం. ప్రజలే భావిస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, దాన్ని డైవర్షన్ చేయడానికి మాత్రమే దీన్ని వాడుకున్నారనేది ఇప్పటికే ప్రజలే గమనిస్తూ ఉన్నారు. उस्मानिया यूनिवर्सिटी में BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर की खिदमात को बहाल करने का मुतालबा करते हुए BC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने एहतजाज किया और प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की। कहा गया है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के सदर मनोहर को यूनिवर्सिटी की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया था। मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते हुए ये कार्रवाई की गई थी। रुकने कानूनसाज कौंसल 3 मार मौलाना इस मसले पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे और इस मसले पर रियासती उजरा से फ़ोन पर बातचीत की। इसके अलावा 3 मार मौलाना ने वाइस चांसलर और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से भी मुलाकातें करते हुए प्रोफेसर की बहाली का मुतालबा किया। इस मौके पर BC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने शदीद एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी हुक्काम से मुतालबा किया कि प्रोफेसर को फौरी बहाल किया जाए। 3 मार मौलाना ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो सारी रियासत को यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा कर देंगे और इंतजामिया को ठप कर दिया जाएगा। हैदराबाद के गोपाल नगर कुकटपल्ली में वाक़े 3003 मुरब्बा गज के पार्क को हाइड्रा ने कब्जा माफिया से आज़ाद करके महफूज बना दिया है। मुकामी रिहायशियों की शिकायत के बाद हाइड्रा ने GHMC और रेवेन्यू हुकाम के साथ मुश्तरका मुआयना किया और पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावीज़ात को हटा दिया। पार्क की हदबंदी के लिए मजबूत फेंसिंग और सरकारी बोर्ड नस्ब किए गए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का गैर कानूनी कब्जा ना हो। रिहायशियों ने इस फौरी और मौसर इक़दाम को सराहा और कहा कि कई सालों से इलाके के पार्क और सड़कों पर कब्जा बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे शहरियों को न सिर्फ हरियाली और तफरीही जगह से महरूमी का सामना करना था बल्कि माहौलियात पर भी मनफी असर पड़ रहा था। हाइड्रा के इस इक़दाम ने न सिर्फ पार्क महफूज हुआ बल्कि मुकामी कम्युनिटी को एतमाद मिला कि इनके शहरी हुकूक और फ़िज़ा की हिफाजत मुमकिन है। रिहायशियों ने हाइड्रा के इक़दामात को सत्तारिश के काबिल करार देते हुए कहा कि ये तेज़ और शफाफ कार्रवाई मुस्तक़बिल में भी शहरी फलाह व बहबूद के लिए मिसाल कायम करेगी। हैदराबाद में मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाजुल इस्लामिक स्कूल के ज़ेरे एहतमाम 30वां सालाना अज़ीमुश्शान जलसा दस्तारबंदी हुफ़ाज़ कराम और हाफ़िज़ात करामात 25 जनवरी 2026 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे ता नमाज ज़ोहर मस्जिद अनवर मदीना मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में मुनक़द होगा। इस इजलास की सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा फरमाएंगे, जबकि निगरानी हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी बानी इदारा करेंगे। तकमीले हुफ़ाज़ के फ़राइज़ हज़रत मौलाना इरशाद अहमद बाखवी अंजाम देंगे और खुसूसी खिताबात हज़रत मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ अल क़ासमी और हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी करेंगे। इस मौके पर हुफ़ाज़ कराम व हाफ़िज़ात करामात के साथ साथ SSC और इंटरमीडिएट मुकम्मिल करने वाले तलबा व तालिबात को असनाद से नवाजा जाएगा और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। नाजिम इदारा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुस्सामी ने अवाम से अपील की है कि इस जलसे में शिरकत करके कुरान करीम के खादिमों की हौसला अफजाई करें और अजर व सवाब हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रियाज अहमद आप तमाम को इस बात की इत्तला देते हुए बेइंतहा खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ कि हमारे इदारे का 30वां सालाना अज़ीमुश्शान जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व दस्तारबंदी हुफ़ाज़ कराम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मुनक़्क़द होने जा रहा है, जो कि 25 जनवरी 2026 को इंशाअल्लाह ताला मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल के अहाते में जो मस्जिद है मस्जिद अनवार मदीना, इसके अंदर इंशाअल्लाह मुनक़्क़द किया जाएगा।
इसकी सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया जानशीन अल्लामा आकिल रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आकिल अल-मारूफ जाफ़र पाशा साहब फरमाएंगे, और इस इजलास की निगरानी हमारे इदारे के बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी साहब फरमाएंगे। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में तकमील हिफ्ज़ के जो फ़राइज़ हैं वो हज़रत मौलाना इरशाद अहमद बाक़वी साहब दामत बरकातुहुम अंजाम देंगे, और ख़ुसूसी खिताबात हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ुल क़ासमी साहब सदर जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद, और इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी साहब के ख़ुसूसी खिताबात होंगे। मुफ्ती आमिर साहब जो कि डायरेक्टर हैं RH पब्लिक स्कूल के दारुल रहमानिया के। तो अलगर्ज़ आप तमाम से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें। साथ ही उलमा इकराम के अलावा मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी और दीगर मज़ाहिब के भी पेशवा हज़रात, उनके रहनुमा इस इजलास में तशरीफ़ लाएंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। प्रोग्राम के औक़ात सुबह 9 बजे से नमाज ज़ोहर तक होंगे। आप तमाम की आमद हम तमाम के लिए, हमारे इदारे के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और फिर इसी तरह हमारे अमला, हमारा स्टाफ और तमाम के लिए एक बेहतरीन हिम्मत अफजाई का मौका होगा। आप हजरात इस बात से वाकिफ़ है कि हमारा इदारा सिर्फ दीनी तालीम नहीं देता बल्कि अंग्रेज़ी तालीम भी देता है, नर्सरी से इंटरमीडिएट तक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चे हैं उसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो तकमील हिफ्ज़ के साथ साथ SSC और इंटर में कामयाबी हासिल की है। इसी तरीके से मुकम्मल तजवीद के साथ नाज़रे की तकमील करने के बाद बच्चे साथ ही साथ जो है SSC और इंटर भी किए हुए हैं। तो ये बच्चों के लिए हिम्मत अफजाई का मौका होगा। तो आप तमाम ऐसे मौके पर हमारा साथ दें और इसमें शिरकत करके ज़रूर हमारे इदारे की और हमारे ज़िम्मेदारों की और तमाम की जो हिम्मत अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। टोली चौकी रोड पर वाक़े अजीबो दी रॉयल अरेबियन रेस्टोरेंट की ग्रैंड रीओपनिंग तकरीब निहायती शानदार अंदाज में मुनक़्क़द हुई, जिसका बाकायदा इफ्तिताह मोहम्मद यूनुस एंड सन्स के ज़ेर एहतमाम इमाम कावान हल्के के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों अमल में आई। इस मौके पर इमाम कॉरपोरेटर नासिरुद्दीन के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजीबो रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि ये रेस्टोरेंट शाहाना अरेबियन जायकों और आला मेयार की खिदमत के साथ आवाम के लिए दोबारा खोला गया है, जहां मॉडल ईस्टर्न और अरबिक खानों का मुस्तंद जायका पेश किया जाएगा। तकरीब के दौरान मेहमानों ने रेस्टोरेंट के खूबसूरत माहौल और मुनफरिद अरेबियन थीम को सराहा, जबकि मुंतज़मीन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अजीबो जल्द ही शहर के बेहतरीन अरेबियन रेस्टोरेंट्स में अपनी नुमाया शनाख्त कायम करेगा। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जैसे कि आज हमारा इनाग्रेशन जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब से, MLA साहब से टोली चौकी का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन पब्लिक की वेट था हैदराबाद में, आखिरकार टोली चौकी ब्रांच कब खुल रहा बोल के। तो आज 23 जनवरी अल्लाह का एहसान है, आज ओपनिंग हो गई। जो भी है क्वालिटी में तो हमारा नाम है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आइए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मज़े का लुफ्त उठाइए क्वालिटी का, और नया इंटीरियर बनाए, हर चीज़ स्पेस बढ़ा दिए, फैमिलीज़ के लिए अच्छी खासी स्पेस बढ़ा दिए, आराम से एंजॉय कर सकते हैं आप सब। लिफ्ट बढ़ा दिए, लिफ्ट का इशू था, पार्किंग का इशू पूरे हैदराबाद में वो सॉल्व नहीं कर सकते। तकरीबन लोग पार्किंग का इशू बोल रहे थे, वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो जहाँ तक हो सका हमारे से हर इशू सॉल्व करे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब से गुजारिश है, आप सब आइए और हमारा अजीबो का खाना आप लोगों को पसंद है, जैसे कि ओमानी मटन, जो हम लोग मेकर्स ऑफ ओमानी बोलते हैं हमारे को, तो ओमानी मटन ट्राई करिए। टोली चौकी पे भी अवेलेबल है, सारे नए नए चीज़ें अवेलेबल है टोली चौकी पे भी। तो आइए और मज़ा उठाइए। नहीं, ऑफर नहीं है। ओमानी मटन ही हैदराबाद के लिए नया डिश है, हम लोग ही लॉन्च करे इसको। हमारे पास जो ओमानी मटन मिलता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता आपको। मंदी भी है, फिर ग्रिल्स, कबाब वगैरह? कबाब्स भी है, ग्रिल्स भी है, मंदी है, बुखारी है, मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टर्स है, ये सारे चीज़ें हैं। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? टोली चौकी पहले तो RTO था, अब तो RTO हट गया, तो टोली चौकी RTO ऑफिस के बाजू बोले तो समझ जाता है। टाइमिंग 1 बजे से 1 बजे तक रात में रहेंगे जी। हलीम का तो आप लोगों को ही मालूम होगा, अजीबो हलीम के लिए भी फेमस है। रमज़ान में बिल्कुल हलीम भी रहेंगी इंशाल्लाह, सहरी का भी पूरा इंतज़ाम रहेगा। और पार्सल स्विगी जोमेटो ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा था, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह।
हैदराबाद में नए साल के जश्न के दौरान नशे में गाड़ी चलाने के इल्जाम में 270 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये गिरफ्तारियां 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के दौरान अमल में आई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 के दौरान शहर में 1158 अफराद नशे में ड्राइविंग के जुर्म में नोटिस किए गए थे, जिनमें से 1042 दो पहिए गाड़ियों के सवार, 51 तीन पहिए गाड़ियों के ड्राइवर और 105 चार पहिए और भारी गाड़ी चलाने वाले अफराद शामिल हैं। पुलिस ने वाज़ेह किया कि नशे में ड्राइविंग न सिर्फ संगीन जुर्म है बल्कि अवामी हिफाजत के लिए भी खतरा है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि रोड डिसिप्लिन कायम रखने और जाने बचाने के लिए खुसूसी महारत जारी रहेंगी। हैदराबाद में मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 8 लाख रुपए मालियत की गांजे की तरसील का शुबा है। तेलंगाना ईगल सेल ने 22 जनवरी को बेगमपेट में इस खातून को हिरासत में लिया और इसके सूटकेस से 9 पैकेट गांजा बरामद किए। गिरफ्तार खातून की शनाख्त ओडिशा की रिहायशी और नवी मुंबई की बाशिंदा ममता दिगल के तौर पर हुई है। तफ्तीश के दौरान ममता ने इंकशाफ किया कि मुंबई में मुकीम मंशियात फरोश अशोक ने हर बैग के बदले इसे 10,000 रुपये देने का वादा किया था। गिरफ्तार खातून ने बताया कि वो अशोक की हिदायत पर भुवनेश्वर गई थी और वहां एक नामालूम शख्स से सूटकेस में गांजा वसूल की थी, जिसे वो वापस मुंबई ले जा रही थी। जिले जहीराबाद में 22 जनवरी की अली सुबह पेश आए एक संगीन वाक़े में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इत्तलात के मुताबिक रात तकरीबन 2:30 बजे जहीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ताजिर से मुनज़्ज़म अंदाज में लूटमार की गई, जिसमें मुलजिमीन ने धमकी देकर भारी रकम और कीमती अशिया छीन ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खुसूसी टीम तश्कील दी और टेक्निकी शवाहिद, CCTV फुटेज और खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया। पुलिस ने खलील मुद्दत में मुलजिमीन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से तकरीबन 11 लाख रुपये मालियत की नकद रकम, जेवरात और दीगर अशिया बरामद कर ली। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमीन एक मुनज़्ज़म ग्रुप के तौर पर वारदातें अंजाम दे रहे थे। विनय कुमार టౌన్ ఎస్ఐ జైరాబాద్ గారు, అతని ఐడి పార్టీ సంబంధించిన నరసింహులు, ఓందేవ్ మరియు హరినేత్ర, ఆనంద్, అస్లాం, పృథ్వీ అండ్ అభిలాష్ ఈ టీం తీసుకొని అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తు మైఫుల్ హోటల్ దగ్గర ఆ చౌరస్తాలో చెక్ చేస్తుంటే ఒక వ్యక్తి తారాసపడని అనుకుండేలాక అతను పారిపోవడం జరిగింది. తను వెంబడించి పట్టుకొని అతను అడిగితే తన పేరు ఇఫ్రాన్ అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత గట్టిగా వార్నింగ్ చేయడం వల్ల ఇస్తే అప్పుడు అతను జైరాబాద్ టౌన్లో 3 కేసులు ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ సంబంధించిన SB కేసెస్ ఒప్పుకోవడం జరిగింది. తర్వాత పోలీసుని తీసుకొచ్చి ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే, ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ 3 కేసుల్లో ప్రాపర్టీ తీసుకొని వేరే దగ్గర వేరియస్ ప్లేస్లో అమ్ముకొని దొంగతనం చేయడానికి మళ్ళా ప్రయత్నిస్తుంటే పట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేసేవాడు. తర్వాత ఈరోజు అతన్ని సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అంతా రికవర్ చేసుకొని ఆ 3 కేసులో నేరం ఎక్కడ చేసిన ప్లేస్ కూడా అతను చూపించడం జరిగింది. ఆ కేసులలో అతన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈరోజు ఇంటరాగేషన్ అయిన తర్వాత అతని రిమాండ్ తరలించడం జరుగుతుంది. టౌన్ పెట్రోలింగ్ సందర్భంగా ఐడి పార్టీతోని టౌన్లో రోజు గస్తీ తిరుగుతున్నా కూడా ఇతను భరత్ నగర్ జైరాబాద్లో అతని నివాసము. అతని దొంగతనానికి అలవాటు పడి తరచుగా దొంగతనాలు రాత్రిపూట చేసేవాడు. ఇంటికి ఎవరు లేనప్పుడు డేలో చూసేసి రిక్కీ చేసుకొని ఆ తాళం ఉన్న ఇల్లు చూసి ఆ DSB దొంగతనం చేసేవాడు. ఈరోజు పట్టుకొని అతన్ని ఇంట్రాగేషన్ చేసుకొని అతనికి రిమాండ్ తరలించడం జరుగుతుంది. ఇంకా మోరీ పెట్రోలింగ్ పెంచి ఇంకా ఈ ప్రాపర్టీ ఎవరికి సంబంధించిన సస్పెక్ట్లని వగైరా అందరిని తీసుకొచ్చి ఇంట్రాగేషన్ చేయమని చెప్పేసి ఎస్ఐ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఈ కేసులో టౌన్ సిఐ శివలింగము వాళ్ళ టీంని చాలా బాగా లీడ్ చేసేసి రికవరీతో సహా 7 తులాలు రికవరీ వచ్చింది. 11 లక్షల రూపాయలు రావడం జరిగింది. కేసులో సొత్తు రికవరీ చేయడం జరిగింది.
ఎస్పీ గారు మన శివలింగం టౌన్ సిఏ గారికి ఎస్ఐ వినయ్కి వాళ్ళ అరిపాటికి సంబంధించిన టీం అందరికీ ఎస్పీ గారి తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ కేసులో నేరస్తుడికి కోర్టుకు పంపడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद पुलिस का तारीखी कदम, अब पुलिस खुद मुतासरीन के पास जाएगी। कमिश्नर वीसी सजनार का फौरी इंसाफ का ऐलान, घर बैठे FIR की सहूलत। फोन टैपिंग केस की तहकीकात में तेजी, KTR की भी तलबी, पहुंचे जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन, कहा मैं तहकीकात से खौफजदा नहीं हूं। पुलिस ओहदेदार हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है, BRS इन्हें माफ नहीं करेगी, साबिक वजीर T हरीश राव का सख्त इंतबाह। बल्दियाती इंतखाबात में BRS 10% बल्दियात पर भी कामयाबी नहीं करेगी हासिल, रियासती वजीर के वेंकट रेड्डी का दावा। कुकटपल्ली में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हाइड्रा ने 3,300 मुरब्बा गज का पार्क कर लिया आजाद, गैर कानूनी तामीरात, मिसमार, फेंसिंग और सरकारी बोर्ड नस्ब। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब, पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।